Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Can you guys see this screen? Yes, ma'am. The things I've painted yellow are the ones we are done with. Ma'am, is this the module? It's the complete module of our CPC2. Yeah. So we are done with the execution part till here, till point 8. And we did this reference review and revision and restitution, caveat and inherent powers. Rest of the things we'll do gradually till 31st May tak we'll be done with our syllabus. We'll discuss two things today. First one is the concept of interpleader suit, and second one is Order 22, death, marriage and insolvency of parties. Shall we start? Yes, ma'am. Fine. Do you guys have Ma'am, CPC with you? Yes, Sanjana? मैम you should wait for like a couple of minutes ना. सिर्फ 8 participants है, फिर आपको बार बार repeat करना पड़ेगा. No, I won't be repeating, beta. It's 3 already. Okay, ma'am. Fine. We'll be dealing with interpleader suit first. First of all, what is exactly interpleader suit is? Section 88 and the corresponding order is 35, which talks about interpleader suit. Let's take an example for this. Interpleader suit is, for example, there is a party A and a party B. Party A has lent some money to party B, and when the time comes and B has to return that money, a party C arises and he says that I have some amount of right over that property, over that particular amount which A has lent to party B. Wait a minute, my connection is not good. Wait a minute. Yeah. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, fine then. So there is a party A and there is a party B. There are two parties, and party A has lent some amount to party B, and when the time comes to return that money to party A back, a party C arises and it says to B that I have some claim over that money which A has lent to you. So the party B is the one here who has no interest in that particular money, in that particular property which was lent to him by party A. And party C and party B are the one who are claiming a right over that property which was lent to party B. So now there is
a point of difference between two people here, party B and C. हेलो मैम नहीं समझ में आया मैम। दोबारा से सुनो एक मैम। बार। हाँ मैम एक बार मैम। starting से समझा दो। Yes. मैम शगुन को बोलो मैम उसका माइक ऑफ करे मैम। नहीं, शगुन की तरफ से कुछ इशू नहीं आ रहा है मुझे। मैम हाँ, आ रही उसका है मैम। माइक पे ग्रीन ग्रीन हो रहा है मैम। चलो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जब होगा तो कर लेगी वो। फाइन। तो व्हाट हैपेंस इज कि एक पार्टी है, तुम पार्टी के नाम से मत समझो, तुम किसी के नाम से समझो। फॉर एग्जांपल नीलिमेश है, यहाँ पे 3 लोग हैं, नीलिमेश, गौरव एंड साकेत। 3 people are there and नीलिमेश has lent a property to गौरव। और जब प्रॉपर्टी वापस करने का टाइम आया, गौरव को जब वापस प्रॉपर्टी नीलिमेश को देनी थी, उस टाइम पे व्हाट हैपेंस इज साकेत कम्स टू गौरव एंड सेज कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा राइट बनता है, नीलिमेश का राइट नहीं बनता है, नीलिमेश ने वो राइट मुझे ट्रांसफर कर दिया है। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इज बिटवीन नीलिमेश एंड साकेत। गौरव को तो प्रॉपर्टी वापस करनी ही है, गौरव का उसको कोई राइट नहीं बनता, उसे लेंड की गई थी प्रॉपर्टी। व्हाट हैपेंस हियर इज कि गौरव और नीलिमेश का आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, गौरव और साकेत का आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट है साकेत और नीलिमेश का। तो यहाँ पे गौरव क्या करेगा, जाके वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा कि सर मुझे नहीं पता, ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, मुझे नीलिमेश ने दी थी प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये साकेत भी आके बोल रहा है कि मेरा राइट बनता है प्रॉपर्टी में। आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस, प्लीज डिसाइड दिस डिस्प्यूट। और वो कोर्ट के पास जाएगा इंटरप्रीटर सूट लेके। कौन जा रहा है? गौरव। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, गौरव, नीलिमेश और साकेत, जिसमें साकेत और नीलिमेश जो हैं वो डिफेंडेंट बनाए जाएंगे। और फाइल कौन करेगा सूट? गौरव, क्योंकि गौरव का यहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, उसे जो प्रॉपर्टी मिली थी वो उसे वापस करनी ही है। सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि गौरव को ये नहीं पता चल रहा कि प्रॉपर्टी वापस किसको करनी है। समझ में आया थोड़ा सा? मैम तो उसका जो कोर्ट फीस और बाकी सब खर्चा होगा तो मैम गौरव क्यों पे करना चाहेगा? वापस मिल जाएगा, गौरव को सारा खर्चा वापस मिल जाएगा। ठीक है मैम। अभी इतना जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया? टेक्निकलिटीज हम आगे डील करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि क्या कंसेप्ट है बेसिक? ठीक है मैम। इंटरप्रीटर सूट से हम लोग डील कर रहे हैं, सेक्शन 88 में दिया हुआ है और ऑर्डर 35 में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? Now we'll be dealing with section 88 first, and after that we'll go through the provisions which are procedural part, which is in rules. Order 35 में है जो। So first of all, let's go through the section. Section says that there are 2 or more persons who are claiming adversely. तो यहाँ पे 2 लोग कौन है जो adversely claim कर रहे हैं? नीलिमेश और साकेत। Some debt, some money or property. Property could be of any kind, movable or immovable. From another person, here in another person is Gaurav, जिसे property lend की थी नीलिमेश ने, and Gaurav is not claiming any interest in the property other than for the charger or cost, or who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. अब Gaurav has no interest in the property, he has no personal interest in the property, the money was lent to him, he is ready to pay, he has no claim over it. Now Gaurav is the one who is going to return that particular property. Now we are dealing with it. Look at the 4th point. Gaurav may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person whom the payment or delivery shall be made. Gaurav is the one who is going to institute a suit in name of interpleader suit under section 88. जितने भी क्लेमेंट्स हैं, चाहे गौरव है, साकेत है, चाहे 3-4 और भी आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव को अपनी प्रॉपर्टी जो उसको मिली थी, लैंड की थी, वो वापस करनी है, तो वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा और कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा कि राइटफुल क्लेमेंट है कौन एग्जैक्टली। थोड़ा समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? यस मैम। I'll repeat again for the people who have just joined. There are 3 people, for example, interpleader suit की हम लोग बात कर रहे हैं. There are 3 people. First one is the person who has lent some property to a person B, and there is a person C who is now claiming any interest in the property which was lent to another person. Now the person who was in the picture because he was lent some money, some property by a person B, that person is going to file a claim in the court as interpleader suit
और इसमें वो इंटरप्लीडर सूट इसलिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डिफेंडेंट जिनके बीच में एक्चुअल में यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उन दोनों में से कोई भी प्लेंटिफ नहीं है। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? वो इंसान जिसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे प्रॉपर्टी वापस करनी है। ये वैसी ही चीज है, आप दूसरे एग्जांपल से समझो कि मैंने अपनी एक वॉच जो थी, मेरी रिस्ट वॉच जो थी, मैंने किसी को ठीक करने के लिए दी थी, और उसके बाद जब जो शॉपकीपर था उसको जब वॉच वापस करने का टाइम आया तो एक दूसरा इंसान भी जो है वो सेम वॉच पे अपना क्लेम वहां पे प्रेजेंट कर रहा है जाके कि नहीं ये घड़ी मेरी है। अब जो इंसान जिसने घड़ी ठीक की थी उसका अपने आप में घड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, लेकिन वो इंसान जो वहां पे आके दूसरा इंसान मेरी घड़ी को क्लेम कर रहा है, मुझ में और उस दूसरे इंसान में आपस में डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे वो शॉपकीपर जो है वो यहाँ पे प्लेंटिफ बनेगा, मैं और वो दूसरा इंसान जो घड़ी पे क्लेम कर रहा है हम दोनों यहाँ पे डिफेंडेंट्स बनेंगे इंटरप्लीडर सूट में। अब समझ में आया आपको क्या बोल रही हूँ मैं? मैम यस मैम। यस मैम मीनल वेट कर रही है वेटिंग रूम में, आप उसको ऐड कर लो। बेटा वेटिंग रूम में नहीं है मीनल, मैंने देख लिया, वेटिंग रूम ऑन है मेरा साइड में। ओके मैम। जैसे ही वो आ जाएगी आई विल एडमिट हर। आप लोग एक बार Okay, इसको जो thank you, मैंने ma'am. बोला इतना आपको समझ में आ गया क्या? यस मैम। ठीक है, तो एक बार सेक्शन की लैंग्वेज देख लो। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 or more persons claim adversely some debt, money, property, it could be anything, a property which is immovable, movable, whatever, mortgage का केस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी बेचने का केस भी हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी डेट हो सकता है। And a person would be plaintiff in this case who has no interest. This is an essential part of this claim that this person who is a plaintiff here should not have any interest in that property other than charges or cost. Charges and cost of what? The charge and cost of what that person has spent to maintain that property which was with that person. जैसे घड़ी के केस में मान लो कि वो जो शॉपकीपर है उससे मेरी घड़ी ठीक की थी, तो उसको उस घड़ी को ठीक करने के लिए जो उसको 100 रुपए लगे थे वो उसको 100 रुपए चाहिए जो भी घड़ी लेगा उससे, तो उसका सिर्फ 100 रुपीज का क्लेम है यहाँ पे, उसका और कोई क्लेम नहीं है यहाँ पे। तो वो इंसान यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट जो है वो फाइल कर सकता है। May institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom payment of delivery shall be made and for obtaining indemnity for himself. अगर उसने जो भी कोई पैसा लगाया है वहां पे वो उसे मिल जाएगा, बस उसे केस फाइल करना है और डिफेंडेंट्स के बारे में अब कोर्ट डिसाइड करेगा। लास्ट में एक ये चीज और देखो जो इसके प्रोवाइजो में है, सेक्शन के प्रोवाइजो सेज दैट provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted. यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कहीं पे मान लो ऑलरेडी कोई ऐसा क्लेम है जो पेंडिंग है कोर्ट में, जहाँ पे वो तीनों चारों लोग ऑलरेडी पार्टी हैं और वो राइट्स जो है वो वहीं पे डिसाइड हो जाएंगे, तो फिर आप इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं करोगे। तो मतलब दे आर ट्राइंग टू बार द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स हियर। सबसे लास्ट पॉइंट में प्रोवाइजो में बस यही उनका पर्पस है कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए प्रोसीडिंग की। दैट्स इट। मैम प्रोवाइजो का मतलब तब होगा ना जब चौथी पार्टी जब आएगी। नहीं, चौथी पार्टी नहीं बेटा, जितनी भी पार्टीज हैं अगर ऑलरेडी उनके बीच में केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी को लेके वहां पे और वो वहीं पे डिसाइड हो सकता है ऑलरेडी, तो आप मल्टीप्लिसिटी करके इंटरप्लीडर सूट नहीं लेके आओगे। तो फिर मल्टीपल एक बार केस चल ही रहा है तो एक और केस कौन करेगा फिर उसमें? बेटा यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ना उस प्रॉपर्टी के बारे में, और मान लो कि वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मान लो कि उस घड़ी के बारे में मुझ में और जो दूसरा इंसान जो वहां पे घड़ी क्लेम कर रहा है उन दोनों के बारे में पहले से ही कोई सूट चल रहा है। के लिए क्या प्रणव, वापस बोलो क्वेश्चन। मैम उस घड़ी के लिए पहले से सूट चल रहा है? घड़ी के लिए पहले से ही सूट चल रहा है ऑलरेडी, यस। और मेरा और उस पार्टी जो क्लेम कर रही है वहां पे घड़ी के लिए, उन दोनों के बीच में सूट ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पे एक और इंटरप्रेटर सूट आ जाए तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि पहले वाली जो सूट चल रही है उसमें ऑलरेडी राइट्स जो है उस प्रॉपर्टी को लेके वो डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि उस सूट में ऑलरेडी वो क्वेश्चन में है राइट्स। यानी कि पहले जो सूट चल रहा है एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर, तो उसमें इंटरप्लीडर सूट नहीं होगा? नहीं होगा अगर वो सारी की सारी पार्टीज वहां पे ऑलरेडी हैं। मैम पर प्लेंटिफ तो होगा ही नहीं उसमें। प्लेंटिफ तो बेटा प्लेंटिफ का वैसे ही कोई राइट नहीं है ना वहां पे। तो प्लेंटिफ की जरूरत भी तो नहीं है ना मैम, क्यों क्या जरूरत है प्लेंटिफ की? प्लेंटिफ की जरूरत पहले नहीं वाले है। सूट। हाँ प्रणव बोलो। मैम ओके मैम समझ में आ गया।
पता चल गया? प्लेंटिफ ऐसा Yes, ma'am. इंसान होगा यहाँ पे, इंटरप्लीडर सूट वही इंसान फाइल करेगा जिसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में। अगर आपका कोई भी इतना सा भी इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में तो आपको इंटरप्लीडर सूट फाइल आपका एक्सेप्ट नहीं होगा वो सूट, ठीक है? नाउ विल मूव ऑन टू ऑर्डर 35। रूल्स में क्या है एग्जैक्टली कि उसका प्रोसीजर क्या होता है वो चीज देखते हैं। आपको यहीं पे पता चलेगा कि उसका प्रोसीजर ऐसा है कि प्लेंटिफ का क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, court is just dismissing that plaintiff from the whole case, just creating a charge over that property regarding the plaintiff. For example, मान लो इस घड़ी वाले केस में plaintiff को 100 रुपए मिलने हैं, तो what court would do is that court would create a particular claim, a charge over that property, and will just free the party who is plaintiff here from any of the proceedings of the suit. क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ की जरूरत ही नहीं है, डिस्प्यूट किसके बीच में है, मुझ में और वो दूसरा इंसान हु इज क्लेमिंग फॉर दैट वॉच। तो जस्ट go through this rule 1. In every suit of interpleader, the plaintiff shall, in addition to other statement necessary for plaintiffs, state what? यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो जो सूट फाइल कर रहा है यहाँ पे इंटरप्लीडर द प्लेंट, उसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी जरूरी है वो यहाँ पे बात कर रहा है। अदर स्टेटमेंट विच आर नेसेसरी फॉर प्लेंट, प्लेंट में आपको क्या क्या लिखना जरूरी है? पहली चीज दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, कि वो ये पहले ही कह देगा अपने प्लेंट में कि मेरा इस घड़ी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा इंसान हूं जिसका घड़ी पे खर्चा हुआ है, मुझे अपने सिर्फ चार्जेस और कॉस्ट चाहिए, दैट्स इट। Second thing he has to write in the plaint is that the claims made by defendant are severally, कि दोनों डिफेंडेंट जो हैं उन दोनों के क्लेम्स जो हैं वो क्या है वो आपको उस प्लेंट पे लिखने हैं, दोनों के अलग अलग क्लेम्स। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, उन तीनों में आपस में कोई प्लेंटिफ में और डिफेंडेंट में, दोनों में से जितने भी डिफेंडेंट है, चाहे 2 डिफेंडेंट है या 4 हैं, दे डू नॉट हैव एनी कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम, कि प्लेंटिफ में और डिफेंडेंट्स में आपस में कोई कोलिजन नहीं है, जो डिफेंडेंट्स हैं उन्हीं में कोलिजन है राइट को लेके। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, we'll move on to the next rule, rule 2. Rule 2 talks about payment of the thing claimed into court. अब यहाँ पे वो चीज है, the property, the thing which is in question here, that where the thing claimed is capable of being paid into court. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे घड़ी है, घड़ी ऐसी चीज है जो कोर्ट में दी जा सकती है, कोर्ट की कस्टडी में, तो कोर्ट क्या करवाएगा? सबसे पहले जैसे ही आपने फाइल किया प्लेंट, कोर्ट वुड टेक दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू इट्स कस्टडी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर द थिंग क्लेम्ड इज केपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट और प्लेस इन द कस्टडी, what happens in this case? The plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. कि जैसे ही आप प्लेंट फाइल करोगे वहां पे एज एन इंटरप्लीडर सूट आप फाइल किया आपने वहां पे, what happens is court would make you pay that particular amount or maybe custody of that property will immediately be given to the court, and this whole thing is because plaintiff does not have any kind of interest in that property, and this rule is to show that particular intent only, that the plaintiff does not have any interest. प्लेंटिफ पहले ही दिन प्रॉपर्टी सबमिट कर दी कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में, आपको जो ठीक लगे आप डिसाइड करो, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दी, दैट्स इट। इज इट क्लियर? रूल नंबर 2? Yes, ma'am. ठीक है, we'll move on to next rule. Next rule is procedure where defendant is suing plaintiff. यहाँ पे क्या चीज आ रही है आप इसको ध्यान से देखो, where any of the defendant in an interpleader suit is actually suing the plaintiff in respect of the subject matter of such suit, the court in which the suit against the plaintiff is pending. यहाँ पे क्या चीज हो रही है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि डिफेंडेंट ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑलरेडी उस घड़ी के लिए मैंने उस शॉपकीपर को सू कर रखा है ऑलरेडी कहीं और पे, आई हैव ऑलरेडी सूड दैट शॉपकीपर फॉर दैट रिस्ट वॉच. And now what that shopkeeper is doing is he is filing an interpleader suit with making me defendant and the other person who is claiming some right over that wristwatch. What happens here is कि यहाँ पे जैसे वही वाली चीज है जो मैंने आपको बोली थी, यहाँ पे जो सेक्शन के लैंग्वेज में हमने देखी थी कि if a suit is already in picture in which all of the defendants are the parties and
the court is going to decide that particular right of those defendants, what happens in that case, an interpleader suit will not be filed. अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि defendant जो है, that person is already suing the plaintiff. तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, for if we take example of this wristwatch case, I have already sued the shopkeeper for that particular wristwatch because that shopkeeper is not giving me that wristwatch. So what happens here is, if that particular person, the shopkeeper, files an interpleader suit here, what happens is court will issue the notice to court 1 in which already a suit has been filed by me against the shopkeeper regarding that wristwatch, that please stay the proceeding against him and order the cost to be adjusted accordingly. यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आप उस पे ध्यान दो एक बार. There is a wristwatch, there is a shopkeeper, and there is some other third person who is claiming a right over that wristwatch. What has already happened is कि या तो मैं या फिर वो जो थर्ड पार्टी उस wristwatch को क्लेम कर रहा है, हम दोनों में से किसी ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट किसी और कोर्ट में ऑलरेडी सूट फाइल कर रखा है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक ने फाइल कर रखा है केवल. अगर हम दोनों पार्टी होते वहां पे तो प्रोवाइजो लग जाता सेक्शन का, बट यहाँ पे हम दोनों पार्टी नहीं है. हम में से किसी एक ने, वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर in some other court. So there are two courts in picture while we are talking about this rule. So court 1 in which a suit has already in operation by the defendant against the plaintiff, and court 2 is the one in which interpleader suit has been filed by the plaintiff. What happens here is, जो shopkeeper है उसने interpleader suit file किया है यहाँ पे. So now what happens is, जो court 1 जहाँ पे already suit pending थी, किसके against में, plaintiff के against में, जो interpleader suit वाला जो court है वो क्या करेगा यहाँ पे, that court will issue a notice to court 1 that please stay the proceeding because an interpleader suit has come before us regarding this property, and please. Ma'am, can you please explain again? Yes. लागवी एक बार वापस से बोलो बेटा, क्या कह रही हो? Ma'am, I'm saying, can you please explain this again? Yeah. There are two courts in operation here in Rule 3, Court 1 and Court 2. Court 1 is the one in which already a suit is pending by the defendant against the plaintiff. Who is defendant here? In the wristwatch ka case, who is the defendant and who is the plaintiff? Ma'am, the third party which is claiming rights over Who the is wristwatch. who is plaintiff in interpleader suit? Shopkeeper. The shopkeeper who has no interest in the property personally, right? Yes. And who are the defendants? Me and the third party. Claimant, ma'am. Me and the third party. Yes, third party is the claimant here who is claiming some right over that property. What happened here Yes, is कि हम दोनों में से जो डिफेंडेंट है, या तो मैं या फिर वो थर्ड पार्टी, हम दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी कोर्ट 1 में एक सूट फाइल किया हुआ है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में. तो उस केस में क्या होगा, प्लेंटिफ जो है, क्योंकि प्लेंटिफ ऐसा इंसान है जिसको ऑलरेडी दो लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी, और प्लेंटिफ यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट अगर फाइल करता है तो कोर्ट 2 जो है जहाँ पे इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जा रहा है, वो कोर्ट 1 को इश्यू करेगा एक नोटिस दैट प्लीज do not continue with this suit because we have come across an interpleader suit regarding this property. Please stay the proceeding and let us proceed with this interpleader suit. And that court 2 will issue a notice to court 1 to stay the proceeding, and that court 2 will proceed with interpleader suit now. और interpleader suit में ये चीज डिसाइड होगी कि किसका राइट उस प्रॉपर्टी में बनता है, ना कि सूट 1 में जो कोर्ट 1 में फाइल हुई थी. Yes, Pranav, बोलो. Ma'am, nothing. Is it clear? Rule 3? Ma'am, Yes. ma'am, many students are unable to join with this ID and password.
बेटा मेरे पास ऑलरेडी वेटिंग रूम में तो कोई है नहीं, 32 लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ मैम, बट उनके शो हो रहा है कि नहीं हो पा रहे, दे आर अनेबल टू ज्वाइन। बेटा अभी तो आई जस्ट रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी बेटा, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही करूँ अभी फिलहाल तो। ओके मैम इसके अंदर वो वाला जो डिफेंडेंट फाइल कर रहा है सूट वो स्टे होगा ना? हाँ, पहले वाला सूट जो है वो स्टे होएगा जिसमें डिफेंडेंट ने करंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट सू किया हुआ है। मैम वो हाँ, तो पहला वाला जिसमें जो हाँ तो वो सेकंड सूट हुआ ना? नहीं, that is suit 1 because that was filed against the plaintiff already by the defendant, one of the defendant. There are two defendant in current case. In case of interpleader suit, there are more than one defendant, right? Because there are people, Yes. multiple people who are claiming the same property. What happens here is that the person, one of the defendant who has already claimed against the plaintiff, प्लेंटिफ का आप एक चीज ये सोचो, यहाँ पे सूट 1 में क्या हुआ है, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम किया हुआ है। किसी के अगेंस्ट हम क्लेम तभी करते हैं जब किसी का इंटरेस्ट होता है ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर वाले केस में है, मैंने शॉपकीपर को ऑलरेडी अगर केस किया हुआ है शॉपकीपर के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये बनता है यहाँ पे कि शॉपकीपर का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं दे रहा। लेकिन इंटरप्लीडर सूट तो तभी फाइल होगी ना जब प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में। एक्सक्यूज हाँ, मैम, तो उस केस में फिर अपन इंटरप्लीडर वाला सूट स्टे कर देंगे। नहीं, इंटरप्रीटर नहीं बेटा, पहले वाला सूट स्टे होगा, सूट 1 जो सिर्फ एक डिफेंडेंट ने शॉपकीपर के अगेंस्ट फाइल कर रखा है यहाँ पे, वो स्टे होगा और इंटरप्रीटर कंटिन्यू होगा। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इंटरप्रीटर पहले वाला सूट, हाँ बोलो मैम, पहले वाला सूट इसलिए स्टे हो जाएगा ताकि पहले इंटरप्रीटर से पता तो लग जाए मालिक कौन है, फिर देखेंगे बाद में जो मालिक है वही लड़े, जो मालिक है ही नहीं उसका सूट क्या मतलब है। हाँ, जिस इंसान का कोई राइट नहीं बनता प्रॉपर्टी में उसके अगेंस्ट में सूट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो एसेंशियल पार्ट होता है इंटरप्रीटर सूट का वो ये होता है दैट प्लेंटिफ हैज टू शो क्लियर इंटेंशन दैट आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। And the person who does not have any interest in the property, why would that person have to contest a suit like that? In suit 1, that plaintiff has to contest a suit without any cause because that person does not have any interest in the property. So the court is of the view that first we'll decide who is actual owner of the property, and if we can decide by having all the defendants in one suit, let us decide like that. That is why to release that plaintiff from the hassle of claiming a particular thing or maybe getting disturbed by a particular thing over which he has no right, please let us decide first who is the one who is owner, and then we'll decide what is to do with the property. That is why what they are doing is they are just staying the first suit, the first one in court 1, and they are continuing with court 2 ka interpleader suit hai. मैम Yes Pranav, मैम अगर पहला वाला जो सूट हो रखा है वो कौन से सब्जेक्ट मैटर से होना चाहिए मैम जब जाके वो स्टे पर होगा? क्योंकि अगर मान के चलो फर्स्ट कोर्ट नंबर 1 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चल रहा है कोई सा केस, और ये दूसरा केस हुआ है इंटरप्लीडर का, तो मैम वो जब भी स्टे होगा? बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो ये चीज लग ही नहीं सकती ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो फोरम के अंदर जाता है, वो तो वहां से गवर्न हो रहा है। कोई दूसरे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है वो सूट? नहीं, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए टाइम का। सब्जेक्ट मैटर पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर आपका सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए आपकी। मैम उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए मतलब? हाँ एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए, आपका क्लेम वही होना चाहिए जो आपने इंटरप्रीटर सूट में क्लेम किया है। सेम थिंग शुड बी देयर। Any other question regarding this? Okay, we'll move on to next slide. Yes Pranav? Nothing ma'am, nothing. ठीक है, we'll move on to next slide. Slide rule 4.
which is talking about procedure at first hearing. What happens on the day of first hearing is that the person, the first the plaintiff is discharged from all the liability from that particular claim, and that person is awarded the cost and dismiss him from the suit. What court would do is कि वो क्या करेगा कि वो घड़ी तो उसे custody ले ही ली है कोर्ट ने, the wrist watch which was in question here, court has already taken the custody of that wrist watch, and now what court would do is discharge him from all the liability and then award him the cost and dismiss him from the suit. के सूट से उसको पार्टी से हटा दिया जाएगा प्लेंटिफ को. यहाँ पे कोर्ट वुड डू इज 3 या 4 जो भी डिफेंडेंट हैं उनको आपस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा और प्लेंटिफ को यहाँ से निकाल दिया जाएगा. और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं उसका वहां पे होना जरूरी है थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, तो कोर्ट ये भी कर सकता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि तब फाइनल डिस्पोजल होता है सूट का तब तक प्लेंटिफ को वहीं पे रखना है, तो उसको वहां पे रख भी सकता है. देखो सी द पॉइंट, retain all the parties until the final disposal of the suit. These two options are there with the court. Whether discharge him from the liability, just award him the cost and just dismiss him from the suit, or the court can retain all the parties until the final disposal of the suit. Any question regarding this point? Okay. We'll move on to next slide. Okay, we'll move on to the next slide, which is the second point of Rule 4, which talks about procedure at first hearing. The second point talks about where the court finds that the admissions of parties or other evidence enable to do it so, adjudicate the title on the claim. What happens is अगर पहले दिन ही कोर्ट को लगता है कि जितने एडमिशंस जितने एविडेंसेस हमारे पास हैं उनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो आप पहले ही दिन ये चीज डिसाइड कर दो और खत्म करो सूट को कि प्रॉपर्टी किसकी है. और अगर कोर्ट को लगता है सीधे थर्ड पॉइंट कि जो एडमिशंस हैं जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास इनफ नहीं है एंड वी हैव टू फ्रेम इश्यूज, वी हैव टू प्रोसीड विद द केस एज वी प्रोसीड विद अदर केसेस, इन दैट केस कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज और फिर उनको उसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा जैसे बाकी सूट्स को डिसाइड किया जाता है. तो यहाँ पे 3 चीजें हैं जो पहली हियरिंग पे हो रही हैं. पहली चीज ये हो रही है कि जिस इंसान ने क्लेम किया था प्लेंटिफ जो है उसे डिस्चार्ज करके लायबिलिटी से केस से डिस्मिस कर दिया जाएगा या फिर उसे रख लिया जाएगा अगर कोर्ट को ठीक लगता है. और सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर कोर्ट को लगता है कि जितने एविडेंसेस हैं, द एविडेंसेस वी हैव, द एडमिशंस वी ऑलरेडी हैव इन द रिटन स्टेटमेंट इन द प्लेंट, that we can decide who is the one who has title over the property, court will decide on the first date of hearing. And if court thinks that we do not have enough evidences to decide the title, court will not decide the title there and then, and court will frame an issue, as many issues as they are, and court will decide those issues as it decide other suits normally. Okay? See the second point, that any claimant to be made a plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff and shall proceed to try the suit. जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जितने भी डिफेंडेंट है कोर्ट उनको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के हिसाब से एडजस्ट कर देगा, क्योंकि प्लेंटिफ को हमने ऑलरेडी यहाँ पिक्चर से निकाल दिया है, प्लेंटिफ की यहाँ जरूरत नहीं बची है अब, इसलिए हम लोग डिफेंडेंट को ही प्लेंटिफ में चेंज करेंगे क्योंकि वी हैव मल्टीपल डिफेंडेंट्स हियर. एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस रूल? मैम यस मैम अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो कस्टडी में ले लेंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसको अटैच करेंगे. यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट कोर्ट क्या करेगा उस केस में, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा अपने साथ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. ओके Ma'am, can you explain the last point of Rule 4? दैट एनी क्लेमेंट वाला Yes, ma'am. दिस पॉइंट सेज कि अगर कोर्ट को लगता है कि क्लेमेंट जो है, जितने भी क्लेमेंट हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं यहाँ पे सारे, उनको यहाँ पे किसी को एक को प्लेंटिफ बनाने की जरूरत है क्योंकि हम ऑलरेडी प्लेंटिफ को हटा चुके हैं यहाँ पे, तो कोर्ट उस सूट को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को चेंज करके आपस में ट्राई करेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 डिफेंडेंट है, मैं हूँ और एक थर्ड पार्टी है जो घड़ी को क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोर्ट हो सकता है मुझे प्लेंटिफ बना दे, उसे डिफेंडेंट बना दे, या फिर हो सकता है उसे प्लेंटिफ बना दे, मुझे डिफेंडेंट बना दे. Okay. इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. We'll move on to the next slide, which talks about restrictions over 2 kind of persons who cannot claim under interpleader suit, which is agents and tenants. कि agent और tenant जो हैं ये बाद में अपने जो उसके
एजेंट इन केस ऑफ प्रिंसिपल एंड टेनेंट इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड, बाद में आप इनके टाइटल डिनाई करके उनको इंटरप्रीटर सूट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं किसी जगह पे रेंट पे रहती हूँ और वहां पे अब क्या हो रहा है, रेंट क्लेम करने के लिए एक और इंसान खड़ा हो गया है वहां पे कि आई एम द वन हु इज एंटाइटल्ड टू रेंट। अब नाउ आई कैन नॉट sue that person and my landlord in interpreter suit, क्योंकि मुझे तो किराया देना ही है किसी ना किसी को। I cannot do that क्योंकि आपको ध्यान है एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा, उसमें एक एस्टॉपल का सेक्शन है। एस्टॉपल के सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड और एजेंट जो हैं वो दे कैन नॉट डिनाई देयर रिस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड, टेनेंट और एजेंट जो है वो अपने लैंडलॉर्ड और प्रिंसिपल का टाइटल डिनाई नहीं कर सकते ऑन अ लेटर स्टेज। यहाँ पे जो लोग एजेंट हैं वो और जो टेनेंट है वो, ये दोनों टाइप के लोग जो हैं ये इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकते इस केस में कि वो लैंडलॉर्ड और प्रिंसिपल का टाइटल डिनाई नहीं कर सकते ऑन अ लेटर स्टेज। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। Restriction is regarding agents and tenants. They cannot file interpleader suit to deny their landlord or principal's title. Any issues regarding the last rule? Fine, we'll move on to the next rule, which talks about charge for plaintiff's cost. In which what happens is, जो मैंने आपको कहा था कि first day the person who is filing a claim regarding that wristwatch is the one who would be given a charge over that particular wristwatch कि उसको 100 रुपए पे करवाने हैं इस wristwatch में, जो भी डिसाइड होगा केस में उस चीज के लिए। यहाँ पे उस चीज पे या फिर किसी भी तरीके से ओरिजिनल प्लेंटिफ को उसका क्लेम दिया जाएगा। प्लीज गो थ्रू दिस रूल वंस। Where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of original plaintiff by giving him a charge on the thing claimed or in some other effectual way. या तो उसे चार्ज क्रिएट कर दिया जाएगा उस चीज पे, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट पर्सन हैज सम चार्ज ओवर दैट प्रॉपर्टी, और इन सम अदर इफेक्चुअल वे कोई ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है कि जो भी सूट डिसाइड होगी उसमें से 100 रुपए का कॉस्ट इस इंसान को जाएगा, शॉपकीपर को, जिसने उस घड़ी के लिए इंटरप्रीटर सूट फाइल किया था। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उसका किस तरीके से निपटारा होगा। यस मैम, ये तो फर्स्ट हियरिंग वाले रूल में भी था कि जो भी सबसे पहले फर्स्ट हियरिंग पे जो भी चार्ज होगा प्लेंटिफ का वो डिस्चार्ज करा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ बता रहे हैं कि प्लेंटिफ की कॉस्ट किस तरीके से चार्ज की जाएगी। या तो आप चार्ज कर दो क्लेम पे, उस पे प्रॉपर्टी पे कि इस घड़ी पे इतने रुपए का चार्ज इसका है, या फिर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दिस पर्सन हैज सम चार्ज, या फिर इन सम इफेक्चुअल वे यू मे इशू एन ऑर्डर और नोटिस व्हाटएवर द कोर्ट थिंक्स फिट। इज इट ओके? फाइन। मैम एक बार रूल 3 बता दीजिए। Yes, Saurabh. Rule 3 is talking about procedure where defendant is suing the plaintiff. If defendant is the one, दोनों में से कोई भी एक डिफेंडेंट ऐसा है जिसने प्लेंटिफ को ऑलरेडी प्लेंटिफ के अगेंस्ट पहले कोई केस फाइल किया हुआ है उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उस केस पे अगर इंटरप्रीटर सूट प्लेंटिफ लेके आता है जिसमें 3-4 डिफेंडेंट्स और भी हैं, तो इंटरप्रीटर सूट को रखा जाएगा और वो सिंगल पार्टी सूट जो है डिफेंडेंट ने जो फाइल किया था पहले, उस सूट को एक बार स्टे किया जाएगा प्रोसीडिंग्स को, और पहले इंटरप्रीटर डिसाइड होगा उसके बाद वो चीज पे जाएंगे, नहीं तो उस चीज को डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राइट प्रॉपर्टी का जो है वो पहले डिसाइड हो जाएगा इंटरप्रीटर सूट में। मैम एक बार मैम रूल इसमें 1 और प्लेंटिफ के 2 अगेंस्ट पढ़ा केस दो। का मतलब क्या हो गया? व्हाट? सॉरी मैम इसमें जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के Join me अगेंस्ट केस again. कर रहा है तो हाँ नीलेश आप बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें आप कह रहे हो ना कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सूट फाइल करा है मैम, तो इसका हाँ। मतलब क्या है कि मैम